and we all know what is rigid body, right? So rigid body क्या है? It is a system of particle. हाँ, system of particle where all the relative position of the particles are not changing, right? एक rigid body, तुम अगर इसको एक rigid body मानते हो तो इसमें क्या है? इसमें हर एक पार्टिकल का पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना? तो इसीलिए तुम क्या करोगे? For rigid body, if the body is in rest, then the position of all the individual particles are same, right? So uh, we have discussed what is center of mass and how to calculate center of mass for a irregular shaped object and what is the equation. And we have already discussed the proof of center of mass for from considering the internal force and external force. After that, we have calculated for two body system, for in particle system what is the center of mass, right? After that you'll we will solve some numerical problems जो आज नहीं होगा, नेक्स्ट डे होगा. आज हम देखेंगे rigid body, center of mass for rigid body. So when you are looking at the rigid body, rigid body क्या है? Rigid body कोई भी physical object, all the particles in the body are fixed, they are not moving with respect to each other, right? So center of mass, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, राइट? कोई भी रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है. इट इज अ फिक्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी एज अ होल, राइट? But if the body is not a rigid body, it is a flexible one, then the center of mass can change its position. Yes or no? But rigid body के लिए center of mass fixed होता है. तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? For ring, for disc, rectangle के लिए यहाँ पर जो है पोजीशन देवर का बताओ. बोल रहा था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिच बॉडी इज अ फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी, राइट? हाँ, ठीक है. तो इसके लिए क्या मिलेगा? एक फिक्स पॉइंट मिलेगा. ओके, सभी के लिए एक फिक्स पॉइंट मिलेगा. तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक फिक्स पॉइंट मिलेगा सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है ना? तो हम सेंटर ऑफ मास जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे बाय मेथड. नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रोटेशनल मोशन. सो व्हाट इज रोटेशनल मोशन? जो हेड क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. रोटेशनल इक्विलिब्रियम के पहले जो आएगा वो आएगा रोटेशनल मोशन. हाँ, तो रोटेशनल मोशन में कोई भी रिजिड बॉडी, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना? तो देखा था सेंटर ऑफ मास में कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट, if your applied force is at the center of mass, okay, if the applied force is on the line of center of mass, then the motion of the object is a translatory motion, right? Translatory. If the applied force not on the line of the center of mass, then your if one the torque external, will be produced and rotational and translational motion will occur. then it will produce on in the object. Okay, then it will produce in the object, and the motion will be translatory and rotational. तो F1 external, इसमें क्या मिलेगा? ट्रांसलेटरी भी मिलेगा एंड रोटेशनल मोशन भी मिलेगा. ओके, तो जब तुम्हारे अप्लाइड फोर्स क्या है? एकदम सेंटर ऑफ मास से जाता है, देन क्या है? देन ऑब्जेक्ट का कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो कपल प्रोड्यूसिंग इन ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एंड वेलोसिटी. So when an object is rotating, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन. क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन.
So when a rigid body is rotating with respect to principles, then you will see that it traces out a certain angle. It will trace out a certain angle with respect to the time. ये जो angle trace out करेगा, if it is tracing out delta theta angle with respect to the time delta t, then this delta omega will be nothing but rate of change of angle with respect to the time. ये ओमेगा क्या है? We all know that omega is nothing but the angular velocity, right? So linear velocity क्या है? Rate of change of position, right? Or displacement time. Yes or no? Linear velocity v equals to displacement time, or v equals to s dt, you can write. But when you are considering angular velocity, then you will say that it is nothing but d theta dt. That is rate of change of angle with respect to time. So when it is rotating, its angle is changing, right? If the axis of the object, we are considering like the position p, okay, and if the position is rotating with respect to certain principal axis, that is the z-axis, then you'll see that the angle tracing out by the object is changing with respect to time. For any instant, the angle is theta. For some time, it is changing theta plus theta. Rate of change of angle with respect to time, okay, velocity. Clear? So, is side angular velocity of a rotating object of a rigid body and क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा डी, राइट? ओमेगा टू डी टी। और डेफिनेशन क्या लिखोगे? रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन लिखोगे, अब इज सेड टू बी प्रोसेस रोटेशनल मोशन if the move along a circle in a parallel plane, ओके। अगर एक प्लेन के रिस्पेक्ट घूमता है, जो एक्सिस है ना, जिस सेंटर को पॉइंट करके घूमेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज कॉल्ड एक्सिस सर ऑफ रोटेशन। हाँ, ये पैरेलल प्लेन्स क्या होते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या हम प्लेन बता सकते हैं? प्लेन के ऊपर वो, that is the object is rotating. If an object, okay, and rotating in that plane, so it will not change the plane initially, okay, and the axis will pass to the center of mass. If an object is rotating freely, then you will see that the axis of rotation is nothing but passing to the center of mass, and the plane where the object is rotating, अगर पॉइंट P को मानते हो, इस पॉइंट पे position R is rotating to the time, then it is tracing out a angle theta, and you will see that it is rotating, the vector is rotating in a specific plane, okay. This plane, if I assuming it xy plane, then the plane of rotation plane of rotation is the xy plane, right? It will not change its plane of rotation itself, okay. When you are applying external force, then it can change the velocity of rotation, or it can change the angle of rotation, ठीक है ना? Sorry, angle rotation, plane of rotation, okay, ठीक है। x y, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर घूम रहा है, ऊपर का जो है z है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कहाँ से पास करेगा? ये हमेशा फ्री रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? अगर ये थीटा एंगल ट्रेस कर रहा है टी टी टाइम पे, देन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा डी टी, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डी ओमेगा डी टी।
यहाँ पर लिखो एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी, अल्फा डी टी। So when you are integrating d omega from omega initial to final, okay, then you are getting integration alpha dt from t0, that is t0 to t. Okay, then you can find it out. Alpha is nothing but when d omega dt, that is omega is constant, then alpha is also कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर वेलोसिटी में तुम देखोगे इट्स नथिंग बट डी एस डी टी, और एक्सीलरेशन में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो सेम थिंग इज applicable for angular velocity, that is d theta dt, and rate of change of angular velocity is angular acceleration. तो अगर अल्फा कांस्टेंट है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, दैट मीन्स ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। और हाँ, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो हमें मिलेगा ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू अल्फा टी। इसका क्या बोलते हैं? डेल्टा वी। वेलोसिटी के लिए हम क्या क्या लिखते थे? तो लिखते थे डेल्टा वी इक्वल्स टू ए इंटू टी, राइट, ये तो था। और ए इक्वल्स टू सर डेल्टा ओमेगा डी वी बाई डी टी, देखो डी वी, तो लिखोगे डी वी बाई डी टी। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर हेयर, देन यू कैन राइट डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा। इसको हम अगर इफ यू आर कंसिडरिंग इस T1 to T2, then you are getting from T1 to T2 and you will get dt, right, for small change. So you can write this that d omega equals to d omega equals to alpha dt और alpha equals to d omega dt। यही तो शुरू किया था हमने, राइट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज द इक्वेशन दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। रेक्टिलिनियर मोशन में प्रूफ किया था ना हमने, d इक्वल्स टू u प्लस एटी और v माइनस u इक्वल्स टू एटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन टाइम, सिमिलर है ना एकदम। हाँ, तो यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी का फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। सेकंड इक्वेशन तुम्हें मिलेगा if you are considering d theta dt and you are trying to find out d theta, then you are getting omega dt, and if you are doing integration on this equation, integration 0 to theta d theta is equals to omega integration 0 to t dt, then you will get theta equals to omega। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0 to t फ्रॉम इक्वेशन 1, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, राइट, omega 0 plus alpha t into dt, then you are getting something like that, theta equals to omega 0 t, omega 0 integration dt plus omega alpha integration 0 to t t dt, right, then you will get omega t plus half, यहाँ से t का इंटीग्रेशन करोगे t स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, राइट, देन यू विल गेट हाफ अल्फा t स्क्वायर। ओके, ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है थीटा। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? तो याद करो, रेक्टिलिनियर मोशन में एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हमें जो मिलेगा सिमिलर मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2। तो वहाँ पर जो था एस, यहाँ पर रिप्लेस हो गया थीटा, वहाँ पर जो था वी, यहाँ पर रिप्लेस हो गया ओमेगा, और वहाँ पर जो था एक्सीलरेशन, यहाँ पर हो गया अल्फा, राइट।
ये 3 चीज याद रखना। नेक्स्ट इज एक थर्ड इक्वेशन है जो हमने प्रूव करेंगे, ये भी छोटा है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। Work done by top। अच्छा, यहाँ पर करते हैं, चलो। थर्ड जो इक्वेशन है देखो, अल्फा का क्या है, डी ओमेगा टी टी, राइट। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, if you are trying to find out omega relation of omega, then you will write d omega d theta dt, then you are getting d theta dt क्या है, omega equals to already d theta dt तो है, राइट। तो तुम्हें मिलेगा ओमेगा डी ओमेगा और डिवाइड बाय डी थीटा, राइट। तो मिलेगा अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। Then you will integrate on both side, integration alpha d theta equals to integration omega d omega। थीटा का वैल्यू 0 to थीटा और ओमेगा का वैल्यू फ्रॉम omega 0 to omega, right, omega 0 to omega। then what you will get, omega square minus omega naught square is equals to 2 alpha theta। यहाँ से तुम इंटीग्रेट करोगे और तुम्हें मिलेगा अल्फा डी थीटा, तो मिलेगा अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा का इंटीग्रेट करोगे ओमेगा स्क्वायर बाय 2, राइट। देन यू विल गेट Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बाय 2। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये मिलेगा, राइट। सॉल्व करो, ये वैल्यू मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। एक ओमेगा 0 स्क्वायर पर लेफ्ट साइड में लेके आओ, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2 ऑन बोथ साइड, देन यू आर गेटिंग ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और ये किसके साथ रिलेटेड है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद रेक्टिलिनियर मोशन के साथ रिलेटेड है। एस रिप्लेस बाय थीटा, v replaced by omega, and acceleration is replaced by alpha। Okay, so you can prove all these equations easily। एक ही फॉर्मूला यूज है, देखो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा डी टी, और यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा डी टी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। ओके, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। एनी डाउट, एनीवन? No, sir. चलो, तो ये 3 फार्मूला प्रूफ हुआ। इस 3 फार्मूला में सिंपल कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी खोलोगे, ठीक है ना। बोलेगा थीटा इज चेंजिंग, रोटेशन ऑफ अ व्हील, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम दैट टू दैट, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यू आर गेटिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। उसमें बोलेगा कितना दूर जाएगा, क्या नहीं, ठीक है ना। ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, इसके बाद जो पॉइंट है हम देखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो 7.14, work done by torque, principle of moment। point of torque। अच्छा, इसके पहले हम देखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के पहले एक कॉन्सेप्ट तुम्हें चाहिए जो है टॉर्क, ठीक है ना। व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क। हम नीचे आएंगे, नेक्स्ट पेज।
So हम देखेंगे what is torque. Already you know about that, what is torque and how the torque is forming, right? Torque क्या है? Torque है rotational moment of a force. क्या है? Moment of force. You can write moment of force around a pivoting point or around a principal axis or axis of rotation. Okay, लिख सकते हो moment of force about a pivoting point or axis of rotation. When you are considering torque, then the force will always create a couple, not couple, it will produce a moment. Okay, तो ये हो गया axis of rotation. Axis of rotation. Is axis of rotation we are considering is z axis. An object, simple object is rotating about it. Okay, simple object rotating about. तो इसके साथ ये कनेक्टेड है. तो तुम्हें क्या अप्लाइड फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस d एट द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ऑब्जेक्ट के एक साइड में फोर्स अप्लाइड है. सपोज करो तुम्हारे पास तुम्हारे जो गेट है, ऑल द गेट्स, डोर्स एंड विंडोज, यू आर व्हेन यू आर ओपनिंग द डोर्स एंड विंडोज, hinges are at the with the walls, right? But when you are applying force to open it, holding the handle, then you will see that it is very easy to open and close the doors and windows, right? Why they are very easy? And this concept and this principle also applicable in levers, first, second and third levers, right? तो लीवर में जब तुम पढ़ोगे उसमें भी क्या है, ये फोर्स का मोमेंट और टॉर्क ही एप्लीकेबल है. Then the application of the force is from a distance d of the axis of rotation. Then what is the torque? Then torque को हम लिखते हैं like that, or some books they are writing like that, right? So normally I write the torque like that. Tau equals to F cross D. F D क्या है? Force, and D is the distance from the pivoting point. Both are vectors. So when the most application of torque you will get in electromagnetic effect or motion of charged particle in magnetic field, electric field and all these things. Then you will see टॉर्क ऑफ अ डाइपोल. ठीक है ना, जो क्लास 12 में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है. तो हम यहाँ पर टॉर्क से जानेंगे क्या टॉर्क है क्या नहीं. सो force and distance from the pivoting point or axis of rotation. Then you are getting F equals to tau equals to F cross D. Cross means cross product, vector product. Then you are getting FD F sin sin theta, right? So sin theta, then you are, it is clearly shown that tau will depend, torque will depend on the angle, right? Theta between the, theta क्या है? The angle between the two vectors. ये है theta. अगर दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है, if theta is 90 degree, then tau equals to FD. f into d. ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा. ठीक है ना? If theta is equals to 0 or 180, then you are getting tau equals to 0. f d sin 0. Sin 0 is 0. That means तुम्हारा अगर applied force वेक्टर के इस डायरेक्शन में है और बाहर की तरफ है, तो तुम्हारा ये फोर्स क्या इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? करेगा क्या बताओ? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर है तो वो कोई रोटेशनल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट? सो एज द फोर्स इज विद अ सर्टेन एंगल दैट इज कॉल्ड, दैट इज आइदर 0 डिग्री with the distance or 180 degree, that is in opposite direction, then it will not produce any rotational moment. That means अगर दरवाजा है, तुम दरवाजा के हैंडल, ये हैंडल है, तुम हैंडल के इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, then the door is opening and closing, right? That right? But when you are applying force tangentially outward, then there is no effect on rotation of the door, right? Yes or no? F1, Yes, F2. तुम बाहर की तरफ खींचोगे, इस रोटेशन के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. अंदर की तरफ ये करोगे कोई नहीं होगा.
बट जब तुम इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे देन इट विल प्रोड्यूस अ मोमेंट एंड इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। देन सर नाउ हाँ सर आपने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फिर कॉमा देके आपने क्या लिखा है? 180 0 और 180 आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसको इसको जब तुम एफ प्राइम को कंसीडर कर रहे हो ये डी एंड एफ, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, ऑपोजिट को दे रहे हो ये 180 डिग्री, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो यूनिट टॉर्क का यूनिट क्या है? CGS एंड SI। CGS यूनिट क्या है? टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स का क्या होगा? बताओ। MLT माइनस 2। पहले हम डायमेंशन मानते हैं, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, देन यू आर गेटिंग ML2T माइनस 2। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इसका यूनिट क्या आएगा? बताओ। सेम एज न्यूटन वर्क मीटर डन। आएगा। हाँ, एसआई में आएगा न्यूटन मीटर और सीजीएस में आएगा सीजीएस डाइन डाइन 9 सेंटीमीटर। 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 वेरी गुड। तो बेसिक यूनिट हो गया टॉर्क का, जो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। वर्क डन, टॉर्क, एनर्जी, ये सब का क्या है? डायमेंशन सेम है, राइट। इसके बाद आओ हाँ, ये क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर। because it follows the vector cross product, right? Vector quantity। तो इसका क्या होगा? डायरेक्शन is according to right hand screw rule, okay? right hand screw rule, ये राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड स्क्रू तुम ऑलरेडी वेक्टर में पढ़े हो। अगर ये एफ है और ये डी है, if you're turning F towards D, then the vector direction is नीचे की तरफ, राइट। ये नीचे की तरफ होगा। अगर ये F है और D है, दोनों का ये रोटेशन इज ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ओके। अगर ये क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ओके। चलो नेक्स्ट, हमने डायरेक्शन देख लिया और इसका यूनिट एंड ये सब देख लिया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसका कंटेंट यहाँ पर है। अच्छा सॉरी, टॉर्क हो गया। टॉर्क के बाद है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ध्यान दो, ये बहुत इजी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? देखो, व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स अगर कुछ ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट में आके रुक जाए, ठीक है ना, वो रोटेशन में था, एक इंस्टेंट में आके कुछ बैलेंसिंग होके वो रुक जाता है, ठीक है ना। देन यू विल सी दैट व्हेन इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, the clockwise moment and equal and opposite anti-clockwise moment, they are preventing each other, ठीक है ना। algebraic sum of the moment will be 0। that means अगर एक तुम्हारा पॉइंट है, जो तुमने ये लीवर में देखे हो, एक मिडिल पॉइंट है और तुम्हारे पास एक सीधा स्ट्रेट स्टिक है, तो इस स्टिक के ऊपर एक साइड कुछ वेट hanging from the stick, another side another some amount of weight is hanging, right? So the applied force on that object is nothing but m1g, and applied force on that object is m2g। पर तुम्हारा जो सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट बीच में है, ये सुनो। अब तुम देखोगे इसका जो अप्लाइड फोर्स है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स एंड सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स, ये दोनों फोर्स का डिस्टेंस डिफरेंट है ना। ये थोड़ा सा पास में है, दूर, ये थोड़ा सा दूर है। तो अगर ये D1 है और ये D2 है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम देखोगे सर इसमें तो टॉर्क डिफरेंट हो जाएगा। देन टाउ 1 इज F1 D1, राइट।
एंड टाउ टू इज F2D2, ये दोनों ये होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक रोटेशनल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, इसमें भी एक रोटेशनल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ये दोनों मोमेंट अगर एक दूसरे से इक्वल हैं, if the two moments producing due to the two massive objects hanging from the stick, then it will produce a rotational equilibrium. Okay, then it will produce a rotational equilibrium. तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, तुम यहाँ पर लिखोगे मोमेंट ऑफ वन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ टू। तुम लिखोगे if W1 D1 W1 D1 equals to W2 D2, और sum of moment W1 D1 plus W2 D2 is equals to 0 होगा। ठीक है, this will satisfy। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, न्यूमेरिकल should be something like that, you have a stick, one mass, one 10 kilogram mass is hanging from here, another 5 kilogram mass is hanging from here. They'll ask you what should be the position. Okay, you have to find out D1 and D2, what should be the position of the support so that they balance each other. तो तुम्हें क्या फाइंड करोगे, तुम फाइंड करोगे F1, तुम फाइंड करोगे F2। F1 क्या मिलेगा 100, F2 क्या मिलेगा 50। अब तुम देखोगे मोमेंट को इक्वल करना है ना, तो तुम्हें यहाँ से देखोगे टॉर्क टाउ वन, यहाँ पे लिखोगे टाउ टू, तो तुम्हें करना है टाउ वन इज इक्वल्स टू टाउ टू, then you are getting like that 100 D1 equals to 50 D2, then the ratio will be D1 by D2 equals to 50 by 100. So D1 by D2 50 by 100, that means 1 by 2. If they said that the length is something like 6 meter, then you will say that the D1 is nothing but 6 by 3 into 1 and D2 is nothing but 6 by 2 into 1, that it is 2 meter and it is 3 meter, right? 3 centimeter. मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। तो इस सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम क्या करोगे, रोटेशनल मोमेंट को इक्वल कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है टॉर्क। सर रोटेशनल मोमेंट क्या है? रोटेशनल मोमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स लगता है ना, तो उसमें एक लीनियर मोमेंट होता है, एक रोटेशनल मोमेंट होता है। लीनियर मोमेंट उसको आगे लेके जाता है और रोटेशनल मोमेंट उसको घुमाता है। इट हेल्प्स टू रोटेट, जो हमने सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, व्हेन अ अप्लाइड फोर्स इज रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, इट इज प्रोड्यूसिंग अ रोटेशनल मोमेंट। ओके, तुम्हारा डोर विंडोज जब तुम इसको ओपन एंड क्लोज करते हो, देन यू आर अप्लाइंग फोर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटिंग पॉइंट, देन इट विल प्रोड्यूस अ मोमेंट। और टॉर्क क्या है, इसी मोमेंट को हम बोलते हैं टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ओके। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द कपल। व्हाट इज कपल, कपल का कोई डायग्राम है इसमें? हाँ देखो, कपल क्या है, टॉर्क में क्या था, पिवोटिंग पॉइंट था। पिवोटिंग पॉइंट मींस एक एक्सिस ऑफ रोटेशन था और एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हिंज के थ्रू, अगर डोर को तुम मानते हो तो हिंज पे डोर क्या है, फिक्स्ड है। अब तुम इसमें फोर्स लगा रहे हो तब वो घूम रहा है, बट इसमें क्या है, अ फ्री ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इन द स्पेस। ओके, तो इसमें तुम देखोगे ये अब अगर ये रोटेट हो रहा है ना due to some external force, then you'll see that the force is applied on the object at two different points. Okay, two different points. तो ये जो फोर्स लग रहा है अगर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, सपोज करो एक डायपोल है, ठीक है ना। डायपोल जब तुम पढ़ोगे, डायपोल में क्या है, दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इस डायपोल को हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यहाँ पर देखो डायपोल, एक डायपोल को तुम रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टर क्या है,
to attract positive charge and to repel negative charge, right? Sorry, to attract negative charge and to repel positive charge, because electric fields are producing due to positive charges. तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, एंड पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. तो सेम सर अमाउंट कपल मतलब एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना कपल को. कपल एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से. एक ही अमाउंट का फोर्स देखो लग रहा है, दोनों चार्ज इक्वल है, ठीक है ना, Q1 Q2. तो इस नेगेटिव चार्ज का जो वैल्यू है पॉजिटिव का भी सेम ही. तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, they are connected a very small distance, small separation, like 2a separation, then it is called dipole. And when the electric field is applied on the dipole, you will see that the electric field is attracting the negative charges and repelling the positive charges. Then a equal force, equal and opposite force will produce a couple. कपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स कपल में हो रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं. कपल मीन्स टू, राइट. The two forces equal and opposite are attracting, one is attracting, another one is repelling. Then you'll see that the force and perpendicular distance, then applied force and distance from the central point, if it is theta, then you will get d, f cross d, f cross d. तो ये बनाएगा एक टॉर्क इस साइड और ये बनाएगा एक टॉर्क इस साइड. तो तुम्हें जो कपल मिलेगा ना, कपल इज फॉर टू फोर्सेस, नॉट ओनली वन. तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर देखो दो फोर्स है ना, एक F दूसरा F, दोनों फोर्स इक्वल है. तो टू इक्वल फोर्सेस विल प्रोड्यूस अ कपल. यहाँ पर हमने क्या देखना है, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू. कपल क्या है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी along two different line of action. ओके, इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है. एक पॉइंट ए पे एक्ट हो रहा है, पॉइंट बी पे, दूसरा पॉइंट ए पे, राइट. और इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है, तो समझ लो यहाँ पर है, वो पॉइंट पे, ठीक है. यहाँ पर तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, you have to find out couple. So couple has a turning effect but no resultant force act on a body. तो इसको सिर्फ घुमा रहा है, बट इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, क्योंकि दोनों का नेट इफेक्ट एक दूसरे से इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. देखो, so the account produced so it cannot produce translatory motion. When we steer a bicycle round a bend with our both hands, the handlebars, we apply a couple. हाँ, जब तुम हैंडल को, बाइसाइकिल को हैंडल को घुमा रहे हो, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट वो कपल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. So water tap. हाँ, वाटर टैप, which can rotate the object but no translatory motion is will produce in the object. तो यहाँ से when you are try to calculate what is the couple, So also, sir, while moving steering of a car. when you are, हाँ सेम, देखो सेम दो इक्वल फोर्स जब तुम लगाओगे तब कपल प्रोड्यूस होगा. Then you are getting torque. Torque is equals to F into पॉइंट A से O तक इसका मानेंगे D1, पॉइंट O से B तक इसका मानेंगे D2. तो F फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रॉम O to A. तो F क्रॉस D1 प्लस F क्रॉस D2, राइट. देन यू आर गेटिंग, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. तो तुम्हें मिलेगा एफ डी वन साइन 90 प्लस एफ डी टू साइन 90, राइट. ये दोनों साइन 90 गायब हो जाएगा और तुम्हें मिलेगा एफ कॉमन डी वन प्लस डी टू. ये डी वन प्लस डी टू मिला के क्या बनाएगा, एफ इंटू डी, राइट. टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डी है d1 plus d2, total distance between the forces. या लिख सकते हो distance between forces, equal and opposite forces, ठीक है ना. तो कापल के लिए क्या है, कापल के लिए मेजरमेंट यही है
मोमेंट ऑफ अ कपल लिख सकते हैं यहाँ पर, मोमेंट ऑफ अ कपल। ध्यान देना, कपल मीन्स दोनों फोर्स दो साइड में एक्ट करेगा, दे आर इक्वल, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो टी है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, फोर्स इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो तुम्हें क्या मिलेगा, एफ इंटू डी, और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री। ठीक है, ये एफ इंटू डी इट इज कॉल्ड कपल। बताओ, एनी डाउट है तो अभी बताओ, कोई डाउट है? इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, बट दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। चलो, तो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क डन बाय द टॉर्क, वर्क डन बाय द टॉर्क। इसके लिए एक डायग्राम था, हाँ यहाँ पर है, वर्क डन बाय टॉर्क। देखो, तो फॉर रोटेशनल मोशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, राइट, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एक रैंडम साइज का ऑब्जेक्ट है, देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो पी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद ये रोटेट करेगा। इसमें एक डेल्टा थीटा भी तुम्हें मिलेगा, चेंज इन एंगल, राइट। अगर एंगल चेंज होगा तो तुम्हें ओमेगा भी मिलेगा, राइट। अगर ये रोटेशन यूनिफॉर्म है तो ओमेगा कांस्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन में आएगा। देन यू आर गेटिंग, so for your external force F, the object is rotating with respect to a axis, that is called axis of rotation, that is on the point O, right. Then you'll see that when it is rotating, it is tracing out a certain angle theta, and we are writing it is delta theta on the diagram. And the point of the force, that is the action of the force, is at a certain distance r, that is the position vector of the point P, right? Position vector of the point P. Then the work done. So अगर ये डेल्टा थीटा ट्रेस आउट कर रहा है, अगर ये घूम रहा है, तो इसके लिए क्या मिलेगा तुम्हें, we all know that the relation of radius and angle trace out by this radius is d theta, or if it is theta, then what is the relation? If the uh, uh, perimeter, that is the s equals to, is called r theta, right? ये तो फॉर्मूला था, yes or no? s equals to r theta. Then what will be the work done? अगर हमें s पता है और इस पाथ में तो फोर्स अप्लाइड था, राइट, इस पाथ में फोर्स अप्लाइड था, तो तुम्हें क्या मिलेगा, डेल्टा w, that is the small work done, is nothing but applied force into this arc pq, with the path। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा आर डेल्टा थीटा, एफ इंटू आर डेल्टा थीटा, क्योंकि पी क्यू क्या है, पी क्यू है एस, और हमें क्या पता है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, डेल्टा थीटा, स्मॉल चेंज इन एंगल, राइट। सो इफ देन यू आर गेटिंग एफ डॉट आर, एफ इंटू आर, और एफ इंटू आर क्या है, फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एफ इंटू आर इज नथिंग बट टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा को हम क्या लिखेंगे, डी थीटा, और वेरी स्मॉल चेंज, so dw is nothing but tau into d theta, integration dw equals to tau integration d theta, right? So ये थीटा क्या हो सकता है, इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम थीटा 1 to theta 2, right? और if you are considering the integral form only, it is nothing but tau integration d theta from theta 1 to theta 2. Or you can put the value of the equation of tau, tau क्या है, एफ डी साइन थीटा, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन करोगे कॉस थीटा, और चीज चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो एक फॉर्म है टू फाइंड आउट द वर्क डन। तो तो यहाँ से अगर तुम्हें पावर फाइंड करना है,
पावर फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे डेल्टा डब्ल्यू रेट ऑफ वर्क डन with respect to time, yes or no, then rate of work done with respect to time, then you are getting tau delta theta by delta t, और पावर p equals to d theta dt ओमेगा है ना, tau into omega, right, because omega equals to rate of change of angle with respect to time, तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा दिस वैल्यू. This is the equation of power, this is the equation of work done, और work done का ये भी लिख सकते हो dw equals to tau d theta. क्लियर है? बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंगुलर मोमेंटम. क्या देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ से हमें टॉर्क तो पहले से पता चला, टॉर्क से कैसे तुम वर्क डन फाइंड करोगे ये भी हमने यहाँ से देख लिया. पावर तो बहुत इजी है, रेट ऑफ वर्क डन, राइट. आफ्टर दैट यू विल मूव फॉरवर्ड एंगुलर मोमेंटम. देखो मोमेंटम ये बात तुमने पहले भी सुने हो, मोमेंटम ये सब नो हमने कहाँ पढ़ा था, वेलोसिटी, राइट. हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था ना, सेकंड लॉ क्या पढ़ा था So तुमने? that was linear momentum. हाँ, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद आ रहा है. मोमेंटम क्या है, इक्वल्स टू m इंटू वी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp dt इक्वल्स टू m इंटू dv dt, और ये m dv dt क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये dp dt तो फोर्स है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखे थे, f इक्वल्स टू dp dt, यही तो था. और यहाँ पर p क्या था, यहाँ पर p था लीनियर मोमेंटम. p क्या था, लीनियर मोमेंटम. Linear momentum. p इक्वल्स टू लीनियर. बट हम जब एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे, लीनियर मोमेंटम में क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, और जब हम एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ, मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना. जब वही मोमेंटम एक रोटेशनल एक्सिस के थ्रू जब हम देखेंगे तब तुम्हें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम. देन दैट इज नथिंग बट, जो टॉर्क में क्या था, फोर्स फ्रॉम द पिवोटिंग पॉइंट और द एंगल ऑफ रोटेशन एफ इंटू आर, एफ क्रॉस आर, और यहीं पर मिलेगा मोमेंटम पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो तुम्हें क्या मिलेगा, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. ये समझो, ये तो मिलेगा. तो एल विल बी इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, like a dumbbell. A dumbbell is on the जो इसके साथ ये है attached है और वो घूम रहा है. So if it is rotating, okay, then it will trace out some certain angle d theta with respect to time. Then the linear momentum is p, which you can get by calculating the instantaneous velocity, right, into time and into mass. But the angular momentum is the if will produce due to the effect of rotation, right. तो यहाँ से तो मिलेगा L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है, ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स तो टॉर्क है, और यहाँ पर तुमने पढ़ोगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम about a axis of rotation. Okay, कैसे मेजर करोगे, linear momentum and perpendicular distance. कैसे मेजर करोगे, linear momentum and distance from the axis. तो linear momentum and distance from the axis of rotation, that is L equals to, rotation क्या है, rotation है capital L, angular momentum का rotation capital L, P हो गया linear momentum, V हो गया distance from the परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ध्यान रखना, तो तुम्हें क्या मिलेगा, थीटा 90 डिग्री, राइट.
तो डायमेंशन क्या मिलेगा, मोमेंटम का डायमेंशन m इंटू वी एम एल टी माइनस वन, राइट। और एंगुलर मोमेंटम का होगा p इंटू आर, तो मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, राइट। ML2T minus एल टू टी माइनस वन, वेरी गुड। तो यूनिट क्या मिलेगा, इसमें था किलोग्राम, क्या था मास इंटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा क्योंकि स्क्वायर आया है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। ओके, एक मीटर एक्स्ट्रा आएगा सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे डेरिवेशन। एंगुलर मोमेंटम में जो हमने देखा है लीनियर मोमेंटम p क्रॉस r, और ये परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री, तो तुम्हें मिलेगा p इंटू आर इक्वल्स टू पी आर। और टॉर्क में क्या मिला था, टॉर्क में मिला था एफ क्रॉस PR आर और एफ क्रॉस टी, आर ही लिखो तो मिलेगा एफ और साइन थीटा। और ये टॉर्क चेंज हो सकता है, बट लिनियर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम से परपेंडिकुलर ही मानेंगे इसमें। तो डी एल डी टी क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, राइट। इसको टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, p तो कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी सेम है, तो डी आर डी टी तुम्हें क्या मिलेगा, अच्छा सॉरी p सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर सेम है तो यहीं पर रुक जाएगा, अगर चेंज हो तो होएगा तो देन यू विल गेट आर डी पी डी टी, ठीक है ना। that means linear velocity भी change हो रहा है, that is instantaneous velocity is changing, that is angular acceleration is there, okay, angular acceleration is there, then you are getting something like that. Dr dt will get v into v mass into और velocity. v into v plus r, और dp dt से क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम जो है इसका वेक्टर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का वेक्टर डायरेक्शन दोनों तो सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे साइन जीरो जीरो मिलेगा, पी भी साइन जीरो मिलेगा, प्लस ये क्या मिलेगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या होता है टॉर्क, तो यहाँ पर मिलेगा जीरो प्लस टाउ इक्वल्स टू टाउ एज द टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू नथिंग बट rate of change of angular momentum, right, rate of change of angular momentum। कंपैरिजन इसके साथ करो फोर्स के साथ, देखो लीनियर मोमेंटम के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, राइट, और एंगुलर मोमेंटम के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये फोर्स जो है, फोर्स का फंक्शन जो लीनियर वेलोसिटी में है उसी फंक्शन टॉर्क का है ये एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी हाँ एंगुलर वेलोसिटी में होगा, ठीक है ना। तो दोनों का फंक्शन सिमिलर टाइप, ओके। तो तुम ये भी लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। बताओ, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? चलो No, sir. इस तक हमने जो भी लिखा सर। है, जब हाँ सर सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल नीचे करिए स्क्रॉल नीचे, सर, ये कौन सा वाला ये वाला नीचे, हाँ नीचे सर। और नीचे, हाँ सर यहाँ पर आपने पी वी साइन 0 डिग्री लिखा है। साइन 0 डिग्री इसीलिए लिखा है क्योंकि तुम्हारा मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा, साइन 0 ही तो मिलेगा। एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है
एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड अ सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? हमेशा टेंजेंशियल। और इस वेलोसिटी तो इसमें मोमेंटम क्रिएट करेगा, m इंटू वी। ये भी तो टेंजेंशियल है, तो v एंड p सेम डायरेक्शन। इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, राइट। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम आएंगे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसके साथ हम देखेंगे रिलेशन ऑफ केपलर्स लॉ, रिलेशन ऑफ केपलर्स लॉ। चलो न्यू पेज आफ्टर। थोड़ा सा बाकी है, देखो। हम्म, अच्छा अच्छा। when an object when an object is rotating when an object is rotating around the principal axis, then it is tracing out some angle theta, and when it is tracing out some angle theta, it also tracing a path, or it is also tracing an area, certain area, right? Yes or no? ये जो एरिया ट्रेस कर रहा है ना, ये एरिया क्या है? इट इज द एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द ऑब्जेक्ट, traced out by the object for a certain time period from point A to point B। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तुम देखोगे ये जो थीटा एंगल ट्रेस किया ऑब्जेक्ट ने, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस है, ये इज ट्रेसिंग आउट सम एरिया, राइट। सो द area is that is the amount, the value of the area traced out for after some time delta t, then you are getting half, क्या लिखोगे, इक्वल्स टू आर थीटा। क्या लिखोगे? Sir, r sin theta into r cos theta. इज इक्वल्स टू आर थीटा, तुम लिख सकते हो ए इज हाफ बेस इनटू हाइट डेल्टा आर होता है, इट इज वेरी स्मॉल। और वी डी टी अगर होता है ना, वी वेलोसिटी और डेल्टा टी टाइम, एंड इट इज हाइट। हाँ, तो ये जो एस है ना, डेल्टा एस, ये डेल्टा एस को हम ये भी तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी वी इंटू टी डी टी, राइट। तुम क्या लिखोगे? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ आर इंटू वी डी टी। ओके, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? ये हो गया एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल डी टी। ओके, देन यहाँ पर लिखो, फिर लिख लेना पूरा थियरी। यहाँ पर लिखना है P इक्वल्स टू एम इंटू वी, हमने पहले से पता है, और V इक्वल्स टू P बाई एम। बट जब तुम इसको पुट करोगे, इसमें जब तुम पुट करोगे क्या मिलेगा? हाफ आर, टी की जगह क्या लिखोगे? P बाई एम डी टी। ओके, तो हमें यहाँ से मोमेंटम का एक रिलेशन मिल रहा है, राइट। तो तुम्हें चाहिए डेल्टा ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर, then you are getting half r p by m a. Then this r into p is nothing but angular angular momentum, right, divided by 2m. This l by 2m, or you can write 1 upon 2m is a vector. Then delta a by delta t is nothing but l upon 2m is a vector. Area is itself a vector, right? So that this relation we can get from the formula. So a, then you can write L equals to twice m delta a by delta t. Simple, right? यहाँ से क्रॉस सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो मिलेगा, दिस इज नथिंग बट एरियल वेलोसिटी। यू कैन राइट एरियल
वेलोसिटी। ओके, और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो हमने क्या पाया है? एंगुलर मोमेंटम एंड एरियल वेलोसिटी का एक रिलेशन पाया है, राइट? दैट इज एंगुलर मोमेंटम एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो ये जो एरिया ट्रेस आउट करेगा, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो ये एरिया हमेशा इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेस आउट करेगा, राइट? और यही केपलर्स लॉ का थर्ड लॉ था शायद, ये सब ना केपलर ने क्या बताया था? इज द सन एट द सेंटर, राइट, of the solar system, and all the planets are revolving in an elliptical orbit, and the area traced out by any planet in two position, aphelion and perihelion, ठीक है ना? एरिया ट्रेस्ड आउट बाय टू द प्लैनेट इन एपीहेलियन एंड पेरिहेलियन। इसका हम छोटा करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर ये होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम है, राइट? क्योंकि जो प्लैनेट मूव कर रहा है इसका मास तो सेम है, और व्हेन इट इज चेंजिंग द वेलोसिटी, तो क्या मिलेगा तुम्हें? व्हेन इट इज चेंजिंग द पोजीशन, द डिस्टेंस इज आल्सो चेंजिंग, so angular velocity is also changing, but the area traced out by the planet is same। तो एक एपीहेलियन में वो जितना मूव करेगा वो पेरिहेलियन में थोड़ा सा कम मूव करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो दो एरिया है, डेल्टा ए, यहाँ पर जो एरिया है डेल्टा ए, दोनों क्या होगा? बताओ प्रिंस। The planet will trace out equal area in equal interval of time, यही था उसका डेफिनेशन, राइट? तो एरिया traced out by the radius vector, radius is equal in equal interval of time। यही तो था, ठीक है ना? तो हमने एंगुलर मोमेंटम से ये सब फाइंड कर लिया है, और इसने बोला था केपलर्स का डेफिनेशन यही था, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी हमेशा कांस्टेंट। दैट मींस वो पेरिहेलियन में जब जाएगा, जब दूर पहुंचेगा, तब उसका वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है ना? इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी घट जाएगा, क्योंकि जब वो दूर जा रहा है तब बहुत सारा एरिया कवर कर रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारा एरिया कवर हो रहा है, और जब पास आएगा, यहाँ पर एरिया पास जब आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना? टू कंजर्व दिस कैरेक्टर, क्लियर है? इट्स कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। ओके, तो ये था अप टू तुम्हारा फाइंडिंग आउट हाउ टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, डेफिनेशन, उसके बाद डेरिवेशन, इसके पहले टॉर्क, वर्क डन बाय द टॉर्क, इसके बाद कापल क्या होता है, कापल का डेफिनेशन, डेरिवेशन, इसके बाद हमने क्या देखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बहुत ही छोटा टॉपिक है, और यहाँ से रोटेशनल ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो यहाँ से हमारा लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम फिनिश हो गया। इसके बाद जो रह गया वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हमने टॉपिक के लास्ट में करेंगे। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप पूछो, किसी का कोई डाउट है? सप्तर्षि, प्रिंस, प्रथमेश, भार्गव, यस सर। बताओ।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम। बताओ आर्चिसमान, Option no doubt. देवार खाओ, नो सर। ठीक है, सब कुछ पॉइंट ठीक ठाक आया है। यस सर। यस सर। चलो ये थ्योरी अब अगर हम ट्राई भी करते तो 2-3 दिन क्लास में लग जाता, राइट? Minimum 2 to 3 days required to complete all these theories to write and derive, right? And we are not getting proper time today in these days due to various types of activities. So that I decided to cover all this basic theory. बेसिक है, सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करो, लिख के कॉपी पे लिख के करो, ठीक है ना? और 7 days अभी भी बाकी है तुम्हारे एग्जाम के लिए, और 7 days अगर तुम हर रोज एक चैप्टर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, एक हाफ भी करो, हाफ भी प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 7 दिन और है। ओके, 7 days यू आर कवरिंग अप 7 chapters। ओके, तो थियरी एंड न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चालू कर दो, और हम और 3 दिन में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हर रोज। ओके, so concentrate on your study, okay, and when you are coming to school then also concentrate on your study, okay? You have to finish minimum 2 to 3 times। अब खुद लिख के प्रैक्टिस करो। हाँ, और बताओ। सर हाँ, सर अगर 3 दिन में हो जाएगा तो 11th को खत्म हो जाएगा सर, तो 12th सेकेंड सैटरडे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कब करेंगे? न्यूमेरिकल्स देखो, बीच में न्यूमेरिकल्स करेंगे। थियरी अगर खत्म नहीं होगा तो इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल पे तुम फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तुम सोचोगे सर थ्योरी तो बहुत है, अब न्यूमेरिकल करते करते वो सोचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने थ्योरी खत्म कर देते हैं, और लास्ट 4-5 दिन जो भी मिलेगा 4 दिन उसमें हर रोज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो आज इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर से ज्वाइन करेंगे नया टॉपिक लेकर। चलो। सर 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 हाँ, सर आप मेरा एक बार डीपी देखिए ना। ये सब के लिए टाइम नहीं है भवेश। 7, 11, हाँ हाँ बताओ, हाथ उठाओ। क्या लिखा? आई लव फिजिक्स, ठीक है, और चलो। सर सो फिजिक्स नहीं है वो, सर वो फिजिक्स नहीं है। दिख नहीं रहा ठीक से। ओके, सर वो लिखा है आई लव देवाशीष सर। भाई साहब, थैंक यू। और देवाशीष ऐसे सर ही खुद में ही एक फिजिक्स है इसलिए। ऐसे ही फिजिक्स के ऊपर अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन रहेगा तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। चलो, थैंक यू सर। आई एम सेंडिंग दिस पीडीएफ फाइल टू योर ग्रुप एंड रेस्पॉन्सिबली ये लिख के कंप्लीट करके कॉपी में रखो, ओके ना? So copy submitted है sir. ये देखो कॉपी सबमिटेड है। अच्छा, कॉपी में पूरा क्लास वर्क कंप्लीट है? यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब तक के लिए रखो, बाद में लिख लेना। ठीक है सर, गुड नाइट। यस थैंक सर, यू गुड नाइट सर। सर, गुड बाय। नाइट। टाइम से जाइएगा सर। शुभ रात्रि सर। पूरा ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी।